Hello and Finally, welcome to our very first video of Chatter and More. यहाँ पे हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं like whatever is happening in the WTC final right now and whatever will happen in the future games. We're going to talk about that a little bit. Myself, Himanshu Gaur, and I've been playing cricket since last 20 years or so consistently. And whenever I'm not playing cricket, I'm watching it, reading about it. So there's a lot of interest, and that is why we are here. We thought that we should start talking about it because we have a lot of thoughts, a lot of ideas whenever we are watching any game. And with me on the other side, coming in live from New Zealand, Wellington, is Manan Chadda. Uh, he needs no introduction, ladies and gentlemen. He is your one and only, a brilliant left-hander batsman in his years of glory, and he has played with players like Himanshu Gaur a lot in the room cricket. So, Manan, would you like to introduce yourself a little bit? thanks, Navanshu. I don't think I need any introduction. As I said, see, But thanks a lot, yeah. So just so you know, guys, like we are just like we are very passionate about Indian cricket team. So that is why we have started this blog in which we will discuss what we feel that the team should do. And again, like it's our own personal views. They are free to adopt them. yeah, we're not gonna get any kind of copyrighted. So it's okay if they use our suggestions, if they bring it Yeah. into play. We are very much open to that. So to start with, uh, Manan, what do you think? I mean, overall, where do you see this game when you see it? At the end of day four, आपको क्या लगता है? Where does it stand? Which side is it like tilted towards a little Based on my limited experience, bit? I feel कि Australia no doubt has a major advantage over India. Mm-hmm. As in, like from day one actually अगर हम देखें तो day one से ही ऑस्ट्रेलिया के पास एक अपर हैंड तो रही है for the last 3 days. तो वो तो Mm-hmm. नो डाउट, बट हाँ एक इंडिया प्लेयर्स में मुझे एक ही चीज ये अच्छी लगी, इन्होंने अच्छे इंटेंट से खेला था. एज इन एग्जैक्टली इनका एंड आई थिंक हम इंटेंट. लोग ये इंटेंट के बारे में जब भी हम लोग किसी गेम के बारे में बात करते हैं we talk about both of us talk about intent a lot, especially you. I think intent is something which you have always you know tried to look for whenever any team is playing any, and of course the Indian team, whenever the Indian team is playing against any opponent, I've heard you say the word intent a lot. So I think I agree with you that the intent that they showed has been good so far in the day. एग्रीड एग्रीड. तो हाँ, तो मुझे एक तो एक्चुअली में इंटेंट बहुत अच्छा लगा इनका, बट हाँ मतलब हैविंग सेड दैट मतलब ठीक है, मतलब पहले 3 दिन जब हम भी डिस्कस कर रहे थे तो थोड़े से ड्रॉबैक्स थे टीम के, तो वी वोंट गेट इनटू ऑल द ड्रॉबैक्स, क्योंकि मतलब ठीक है अभी सिचुएशन तो मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट है फॉर इंडिया टू विन Mm-hmm. द मैच, बट ऑलवेज देयर इज अ फूल सो एंड विच इज स्टिल देयर. Yeah, तो yeah, yeah. And I think when you say difficult, it is because of the score that they're chasing, right? 443. It has only been chased, what, four times in the 150 years history of cricket. Only four times it has been chased successfully. So that tells you something that, if a team is batting fourth, number one, they're batting fourth on in a World Test Championship final. They played really good cricket over the last 2 years. But when you come to this last one day and you're chasing 443, but if you look at it now that the team has scored 163 out of it already, right? And when you look at the way that they have been batting, the way that, as you said, the intent that they have shown on the last day, 280 to get in 90 overs. What do you think? Like, are the possible results? Do you still see all three results possible, or to be honest, I hope India wins the match. I mean, Obviously. hope हम सभी यही Obviously होप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, और हम भी यही होप कर रहे हैं, बट हाँ कुछ नहीं, होप एक्चुअली में नहीं मुझे कर लग रहा है तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल तो हैं. ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया विनिंग द मोर, अगर मैं रेट करूं प्रोबेबिलिटी तो मुझे लगता नहीं है राइट. मैच ड्रॉ होगा. पर्सनली मुझे लगता है इधर ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जीतने की, बट अगेन इंडिया की मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी तो है. मतलब मैंने पूरा मैच नहीं देखा, तो मैं हिमांशु तुमसे पूछता हूँ कि पिच कैसा बिहेव कर रही थी, क्योंकि जब मैंने हाइलाइट्स देखी तो पिच में इतनी मूवमेंट नहीं थी.
और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, हम्म। इंडिया ने भी लास्ट टाइम इंग्लैंड को मतलब एक बहुत लंबा टारगेट दिया था, और इंग्लैंड ने बहुत ही आसानी से अपने 4th डे में मतलब बना चेज लिया था। किया था, तो मुझे राइट। उस बेसिस पे लग रहा है कि अगर 4th डे पिच हम्म इतनी इजी हो जाती है बैटिंग करने के लिए, हम्म तो हम्म। मतलब तू बता, मतलब तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है तू बोल पिच का। सकता है, तू मुझे, इट्स ओके। तू बोल अरे सकता बताओ। है। इसको सब Hey, कुछ। I agree with you. Wicket could बिल्कुल like hardly ही कुछ misbehave कर रहा है. It's not like any Indian wicket, right? अगर ये मैच इंडिया में हो रहा होता, we would have said no chance for India, right? Because wicket last day तक इतना इतना ज्यादा misbehave करना हम्म, स्टार्ट कर देता है, like fourth day से ही it would have become a rank turner. Lion would have been all over Team India. But when you see, I mean, I saw quite a few overs today. The ball is not misbehaving at all, and I think that is what we need, right? That in a 5 day test match, yes, it will definitely grip one, or an odd ball will grip here and there. But when you look at the rate at which the teams have scored throughout the game, right, it has हम्म, been more than 3.5 runs per over, and India is scoring at more than 4 runs per over in this inning, which tells you, I think, at least it tells me that there are ample opportunities to score on this wicket, and where how I am thinking is, if we score around 80, 90 runs in the first session tomorrow, Australia will be, and without losing wickets, right? That's the main thing, that you score 80, 90 runs without losing wickets. Then I think Australia will be on a little bit of back foot. They will try to send their people, a little bit back on the boundary. And then wicketing opportunities will also come down, I think. बिल्कुल। तो कल, हाँ, मुझे भी यही लगता है कि कल का आई गेस फर्स्ट सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट बहुत माइट इंपॉर्टेंट डिक्टेट है, द हाँ। रन्स। हमें आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं जब भी इस तरह से इंडिया अच्छा खेली होती है लास्ट सेशन, एंड देन नेक्स्ट डे का जो फर्स्ट सेशन होता है, मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है कि भाई ये इंडिया फर्स्ट सेशन में निपट जाएगी। आई डोंट नो अबाउट यू, बट ये मुझे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम अच्छा खेल के जाते हैं, नेक्स्ट डे आते मैं ही 2-3 विकेट यूं गिर जाते हैं, और हमारी सारी होप्स आधे घंटे में खत्म हो जाती है पहले। सही में मैं तो देख भी नहीं पाता। और दूसरी प्रॉब्लम मतलब न्यूजीलैंड में क्या होती है कि यहाँ का अगर तुम कोई भी स्काई स्पोर्ट्स लो, तो फॉर सम रीजन वो एक बॉल पीछे होता है। तो अगर कोई भी विकेट गिरती है तो मैं गूगल में पहले ही चेक कर लेता हूँ कि यार विकेट गिर क्या गई। हुआ, क्या है? तो मतलब हाँ, मतलब मैं भी पहला सेशन तो मैं भी मतलब आज का भी नहीं देखूंगा, मतलब दो थोड़ा सा देखूंगा, बट हाँ आधा, पहला आधा घंटा ये टेंशन वाला निकाल ले, फिर उसके बाद हम्म। देखेंगे। क्योंकि मुझे आई लग थिंक रहा है यार वही, कि हाँ। हम्म मतलब मुझे क्या लगता है कि जैसे थोड़ी सी पिच भी ग्रीन है, और मुझे लगता है जैसे रहाणे अच्छा खेल रहा है, बट हम्म। यार थोड़ा सा तो लक भी चाहिए, क्योंकि पहले दिन तो लग मतलब चाहिए भाई। पहले आधे घंटे में बॉल भी स्विंग होगी। जैसे फर्स्ट हम्म। टाइम तो इनको अच्छा लिक मिला, होपफुली लक की जरूरत ना हो, और ये थोड़ी अच्छी टेक्निक मतलब जैसे ही अच्छे से ही खेलें और कोई चांसेस ही ना क्रिएट हो। ये फोर बट हंड्रेड फोर्टी बनाने के लिए आई टेल यू, लक तो चाहिए जरूर। इतना दूर तक पहुंचने के लिए 443 के लिए लक आपको चाहिए। आई थिंक लास्ट ओवर था, या कौन सा ओवर था अभी, लास्ट या सेकंड लास्ट ओवर, जब लायन डाल रहा था, सो देयर वाज एन एज रहाने का, एंड नोबडी कॉट इट, सो सम सॉर्ट अच्छा, ऑफ इसलिए दैट था। लक। हाँ, some sort of that luck, मुझे लग रहा है कि ऐसा मैंने देखा है। I don't know, but I think it was second last over or something when Rahane नहीं ऐसा ही edged एक्चुअली। one, but the keeper Alex Carey could not hold on to it. Labuschagne से काफी दूर रह गया, तो इस तरह का थोड़ा लक तो चाहिए होगा हमें। फोर हंड्रेड नेथन फोर्टी लाइन की थ्री बॉल ज्यादा स्पिन हो रही है क्या? वो ऑड बॉल कोई होती है इधर उधर, लाइक देखो टर्न तो मिलेगा, बिकॉज मिचेल स्टार्क को ये लोग बॉलिंग इसीलिए कराते हैं, आई थिंक, वेराज उसने 7.5 या कितने रेट से रन दिए हैं, 6.5 या हम्म, 7.5 से रन दिए, बट स्टिल दे kept on bowling him for about 7 or 8 overs, so that he creates that rough for Lion. तो वो क्योंकि जिस एंगल से और जिस डायरेक्शन से वो बॉलिंग करता है, लेफ्ट ऑन द विकेट, वही लायन को चाहिए, राइट? तो वो वहां से रफ हम्म, बना दिया, थोड़ा बहुत रफ तो बनता ही बनता है, लास्ट डे एनीवे इट्स गोना टर्न अ लिटिल बिट फॉर श्योर, बट आई थिंक बहुत ट्रू विकेट है, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बैटिंग में ज्यादा टफ होना नहीं चाहिए, एंड द वे विराट इज बैटिंग, आई एम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव खेल रहा है वो, अच्छा फीट मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है अभी, मैंने बहुत अच्छे हम्म, ड्राइव्स देखे हैं उसके,
just batting हाँ time. बहुत हार्ड ड्राफ्ट था। तुझे उसका डिसमिसल कैसा लगा, रोहित शर्मा और चेकू का? आह, वो दोनों डिसमिसल्स तो यार क्या ही बताऊं मुझे। रोहित शर्मा, वो एक ही शॉट था जो उसे नहीं खेलना चाहिए था और वही उसने खेला, मुझे मुझे लगता है ऐसा। Because सही में। when someone is bowling, right, I mean, when an off break bowler is bowling from around the wicket, either it's gonna, he's always going to be at your stumps. वो हम्म। उससे बाहर जाएगा ही नहीं, तो जो बॉल पढ़ के सीधा निकल जाएगी वो स्लिप्स के पास जाने के चांसेस हैं। जो बॉल हम्म। पढ़ के थोड़ा सा टर्न होगी वो सीधा स्टंप्स में लगेगी। तो एक स्वीप ही शॉट है जो आपको शायद नहीं खेलना चाहिए था, बट रोहित शर्मा खेलता है वो शॉट हमेशा से, वो उसका आई थिंक शॉट है स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो इसलिए, हम्म। which he always does against the Pacers, he will pull always, even if he gets out 10 times, he'll do it again 11th time because वो उसका scoring shot है. So हम्म। I don't blame him for trying that, but it just not be the right ball or the right angle to do it. But पुज्जी का तो वो शॉट भी नहीं है यार। पुज्जी वो ने तो क्या कुछ भी किया? यार, एक्चुअली में लग जाता तो सही था, बट लग मतलब जाता मेरे ख्याल से ऑफ सिचुएशन कोर्स, के अब हिसाब से लग नीड जाता नहीं तो थी। हम तालियां बजा रहे होते। मेरे ख्याल लग से जाता ताली तो बजाई हम, कि चेपू का बहुत पॉजिटिव इंटेंट से आया, पूछा हाँ, हम बोलते भाई सीएसके ने खिलाया क्यों नहीं इसे। सीएसके ने वही खरीदा, वो चीज़। खिलाया क्यों नहीं। बट वही तो, पूरा आईपीएल तो खेला नहीं यहाँ के। एक बिल्कुल ही अनलाइक चेतेश्वर पुजारा शॉट खेल दिया उसने। बट अरे सही में आई मतलब थिंक मुझे इट भी यही लगा। आई थिंक जो तूने बोला इंटेंट की बात थी, इंटेंट वो पूरी टीम में वही है कि हाँ। स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे दिखें, you should like try and score on those. So which is fine, I think, when you're trying to score. He at least did not get out while defending. That's uh, वो नहीं हाँ हुआ तो वो भी fine. एक्चुअली में मुझे क्या लगता है कि अगर पुजारा हमारे अभी बैटिंग जैसे दो आउट होते हैं ना, तो इंडिया हम्म, फिर भी एक बेटर हैंड पे होती है, बेटर क्योंकि है, फिर तो हाँ। टीम मतलब पुजारा एक से हैंड संभाल सकता है। रहाणे के साथ क्या है, मुझे लगता है रहाणे कभी कभी एक सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी दे देता है। दे देता है, राइट। नहीं, आई एग्री, बिकॉज वो हमेशा स्कोर बोर्ड टिक करने की कोशिश करता रहता है ना। इज नॉट समवन हु वुड जस्ट स्टे देयर। उसका हम्म। बैट चलता रहता है, रहाणे का बैट। तो वही, अगर हम्म। एक बॉल 5, लाइक डे 5 की पिच पे तो कोई बॉल टर्न कर गया, नीचे रह गया, हल्का सा मिसबिहेव कर गया, अनइवन बाउंस हो गया, सो somebody like a Pujara may have had a better opportunity to हम्म। defend or go past that. But Rahane का बैट चलता रहता तो उसका शायद, but still again इतना misbehave कर नहीं रहा है विकेट, so I hope कि ऐसा कुछ ज्यादा ना हो। But from your perspective, इंडिया की bowling कैसी रही सेकेंड इनिंग में? कैसा, did you watch it a little bit? तूने या stats हाँ देख के, can you bowling तो talk a little bit about it? मतलब देखो लीथल तो थी बॉलिंग, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, मतलब फर्स्ट इनिंग से तो अच्छी थी ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली। फर्स्ट इनिंग्स में तो बहुत ही मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। सेकंड इनिंग्स में बेटर तो थी, और मुझे लगता है कि इन्होंने सही डिसीजन लिया कि मतलब पहला कॉम्बिनेशन पता नहीं कितना सही था, बट हाँ पहला कॉम्बिनेशन जैसा इन्होंने उमेश यादव और उससे स्टार्ट किया था ना, शायद सिराज से। सिराज, हाँ। हाँ ना, तो मुझे वो कॉम्बिनेशन भी सही लगा, क्योंकि मतलब इनिशियली क्या हो रहा था, मुझे लग रहा था फर्स्ट बॉलिंग में उमेश यादव तो बहुत रन दे ही रहा था, हम्म। फिर अपना श्रद्धालु ठाकुर, तो वो भी ना इतना यार बचा तो नहीं पा रहे थे। तो एक एंड से मतलब तुम दोनों रन एंड से रन लीक ही हो रहे थे। तो इस बार भी हम्म। देखो रन तो लीक हुए ही है, बट मुझे राइट। कॉम्बिनेशन फिर भी ठीक लगा, क्योंकि उमेश यादव मतलब ठीक है, ये इस बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट हाँ, हम्म। तो उमेश यादव क्योंकि रन तो देगा ही देगा, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी अच्छा है कि तुम एक अपने मेन पेसर को शायद बचा के हम्म। रख रहे हो एज हम्म। अ। हाँ, बट मुझे मतलब इनकी तुमने हाँ। तूने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, एक एक एंड से somebody like a शार्दुल और an उमेश will bowl, दूसरे एंड से हाँ somebody like a शमी और a सिराज will bowl, so सिराज that बिल बॉल। make हाँ, a, ताकि दोनों एंड से तो रन लीक ना होना एटलीस्ट, हाँ, मतलब वो भी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है, इस बारी चल गया बट हाँ, ताकि हम्म, दोनों एंड से मतलब रन एटलीस्ट लीक ना हो। बट लीक मुझे ना हाँ, हो। मुझे ठाकुर की ओवरऑल बॉलिंग में ज्यादा मतलब मतलब ऑनेस्टली मुझे ठाकुर की बॉलिंग में उमेश यादव से ज्यादा इंटेंट लगा, थोड़ा स्मार्ट क्रिकेटर लगा। हाँ, वो तो यार है। शार्दुल ठाकुर इज अ स्मार्ट क्रिकेटर, बट इस इनिंग में कंपेयर टू फर्स्ट, मुझे उमेश यादव की बॉलिंग ज्यादा अच्छी लगी इस इनिंग हम्म। में। बस उसने अच्छी अच्छी लाइन लेंथ से बॉल डाली है, लाइक ही स्टक टू एटलीस्ट वन स्पॉट, ही ट्राइड टू स्टिक टू वन वन स्पॉट, व्हिच इवेंचुअली लाइक ही गॉट 2 विकेट्स। अच्छी लाइन पे उसने बॉलिंग करी, और लबुशेन को जो बॉल डाला था वो तो बहुत ही वो बहुत सही अमेजिंग लगा। बॉल डाला था भाई। उमेश यादव डज दिस आई थिंक समटाइम्स, कि he just हाँ। picks up a wicket out of nowhere
he'll just bowls a superb delivery and then after that he'll start leaking runs. So every over a boundary or something here and there. वो हम जो बात कर ही रहे थे अभी परसों, वो होता ही है. अच्छा अच्छा, एक बार बता, जैसे तो तुम्हें सुबह पिच का क्या लग रहा है? स्विंग होगी या मतलब सुबह भी बैटिंग स्विच ही होगी? और इनके लिए पिच कितना मुश्किल होगा नेगोशिएट करना फर्स्ट आवर? नेगोशिएट करना मुश्किल रहेगा, आई थिंक, बिकॉज पूरी रात अंडर कवर रहेगी पिच. हम्म सो जब सुबह कवर्स हटाए जाते हैं, देयर इज लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर हमेशा पिच में, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्प मिल सकता है पेसर्स को. बट एट द सेम टाइम, जो अभी हम बात कर रहे थे कि पिच इज नॉट मिसबिहेविंग एट ऑल, देयर आर नो डीमंस इन द पिच. सो it's just about playing that 30 minutes, and again not just defending the way they have been batting. If there are boundary balls, जो अभी बात कर रहे थे कि अगर पहले like एक घंटे में हम्म India starts scoring at a fair pace, like whatever they are doing, the four runs and over, if they continue to do that for the first hour or so, then तो हम्म वो automatically थोड़ा सा back foot पे कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को. करने यार फील आ जाएगा। हाँ? क्या बोल रहा है? करने फील आ जाएगा। हाँ, फिर फील आ जाएगा सच में. मुझे 4:30 AM उठना पड़ेगा इसके लिए. बट तू संभाल हाँ वो लेगा तब चाहिए। तक. थोड़ी देर तो तू संभाल लेगा, 4:30 AM से पहले तो तू संभाल लेगा. हाँ तो हमने बेसिकली लोगों का ऑब्जर्व किया कि जब भी अगर हम दोनों बात कर रहे हो तो विकेट गिर जाती है। विकेट गिर तो जाती है, अब हाँ तो एग्जैक्टली. तो हम दोनों इंडिया की बैटिंग में बात नहीं करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में बैटिंग में बात करेंगे. थोड़ा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, सबके लिए. और हाँ वन वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, हम्म मनन चड्ढा. कल इंडिया इंडिया के पर्सपेक्टिव से will be the bowler, who will be the key bowler that they will think, okay, इसको हमें सबसे ज्यादा maybe no, cautiously खेलना है, या he's the biggest threat to the Indian batting lineup for tomorrow according to you? यानी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ना मुझे सारे बॉलर ही इनके कॉशियस वाले लगते हैं, बट मुझे कल लगता है कि कल क्योंकि फोर्थ डे है ना और थोड़ा सा नेथन लायन को ये देख के खेले, तो मतलब मैं कहूंगा नेथन लायन। और हम्म मुझे हाँ नेथन लायन, और मतलब यार वैसे तो इनके सारे बॉलर्स ही मुझे लगता है पैट कमिंस भी ऐसा है कि मतलब एक ही लाइन और लेंथ पे ये गुड लेंथ डालते रहेंगे और कभी कभी तो बॉल हम्म आउट पे आउट होगा ही होगा। पर मेरे हिसाब से हाँ मतलब वैसे तो कैमरून ग्रीन भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, मतलब मुझे उस पर लगता नहीं था वो इतनी सही बॉलिंग करवा लेता है। आई थिंक इस विकेट उसको पे कल को अच्छी बोलो। बॉलिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ हाइट. इस विकेट पे थोड़ा बाउंस है ना, तो हाइट से उसे वो बाउंस मिल रहा है थोड़ा थोड़ा. हम्म, जैसे हाइट है न्यूजीलैंड ना में उसका. काइल और विलियमसन लायन टाइप। लायन के लिए भी आई थिंक लायन की तरफ से यही सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा, जो तू बोल रहा है. लायन में आई मीन आई एग्री, आई थिंक लायन सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 40 ओवर्स, जब तक वो न्यू बॉल दोबारा नहीं मिल जाती उनको. लायन भी जिस हम्म ट्रैजेक्टरी से बॉलिंग करता है, वो बहुत ज्यादा रेप्स देता है बॉल पे, उसको भी बाउंस बहुत अच्छा मिलता है. आई थिंक वो ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कल, कि लायन को किस तरह से खेलते हैं. और वैसे भी रहाणे पूरे आईपीएल में देखा था, स्पिनर्स को बहुत आउट हुआ था वो सबसे. आई थिंक 10 टाइम्स या जो भी वो आउट हुआ था, 90% ऑफ द टाइम्स वो स्पिनर पे ही आउट हुआ था. आई थिंक he'll have to just play it cautiously. Maybe रहाणे हम्म एंड विराट, दे कैन टॉक टू ईच अदर कि किस तरह से हमें या लायन को कौन ज्यादा फेस करेगा, कौन ज्यादा अच्छे से खेल पा रहा है लायन को. तो वो आई थिंक इनको अगेन काफी अच्छे से कम्युनिकेट करके और डिसाइड करके खेलना पड़ेगा कल लायन को. आई थिंक वही है सबसे बड़ा थ्रेट मेरे अकॉर्डिंग भी लायन ही है. टेंशन तो हुई। और तो तुझे क्या लगता है कि व्हाट आफ्टर? वैसे तो मैं चाहता हूँ विराट कोहली किसी और की बैटिंग ही ना खाए, हाँ बट सही हाँ में यार. इन, उसके अलावा तुझे क्या लगता है केएस भरत इस पिच में सही खेल लेगा? क्योंकि यार वो टेक्निक वाइज तो मैंने सुना सही है, बट एक टेक्निक प्लेयर इनको वाइज एक एंकर हाँ. तो चाहिए है ना। हाँ, विराट कोहली के 180 या 200 रन तो चाहिए कल. अगर वो इतने मार देगा तो मैच इंडिया जीत सकते जीतेगी. इंडिया जीतेगी फिर तो हैं। देखो. विराट कोहली के 200 हो जाए, रहाणे के 100 हो जाए। हाँ हाँ. कितने मतलब बोलते इन थे दोनों को बत्तीस? आई थिंक लेके जाना पड़ेगा. माय माय वाइफ सेज हेलो टू यू मनन. हेलो अदिति। बट मुझे लगता है कि रहाणे और विराट को एटलीस्ट लाइक 300 तक टीम को ले जाना पड़ेगा, तब हमारे पास चांस अच्छा, लाइक अनदर 150 रन की 150 और रन्स बढ़ ये दोनों लेके जाएं, तब जाए। चांस है. अदरवाइज एक बार, बिकॉज वन भरत, yes he is like technically sound, मतलब
better than a lot of other keepers in the country, but at the same time he doesn't have the experience of playing these bowlers, and that too in England, that too in World Test Championship final. हम्म, वो मुश्किल है। तो बट हाँ, वी हैव जड्डू, और उसने भी, शार्दुल ने भी अच्छी बैटिंग की थी फर्स्ट बैटिंग इनिंग की। में। शार्दुल लॉर्ड ठाकुर तो है ही, इंग्लैंड में तो अच्छी बैटिंग करता ही है वो। सो हम्म, आई थिंक वी हैव बैटिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि हमें इन दोनों को 300 तक लेके जाना पड़ेगा, 300 एटलीस्ट लेके जाना पड़ेगा इन दोनों नहीं, को, एंड सही देन मतलब मुझे भी अगर ये ये दोनों लगता है कि 300 तक ले गए तो एनीवे ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे काफी आ जाएगी, आ बिकॉज जाएगा। दे विल दे विल स्टार्ट रिकॉलिंग गाबा, जो उनके साथ गाबा में हुआ था। ऑल्दो ऋषभ पंत नहीं है अभी, बट जो गाबा में उन्हें हराया था वो उन्हें याद आने लग जाएगा। हम्म। और एक्चुअली मुझे लगता है कि इनके ना माइंडसेट भी होता है, जैसे जैसे ही इन्होंने 80 रन बना लिए विदाउट एनी विकेट लॉस कल, हम्म। और तो मुझे लगता है फिर टारगेट लेस देन 200 है टू तो ज्यादा हंड्रेड यस। अचीवेबल है, फिर लेस देन हाँ 150 है, फिर लेस देन 100 है, तो वो हाँ ज्यादा वही। धीरे धीरे अचीवेबल लगेगा। आई थिंक इनको भी, इंडिया को भी छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलना चाहिए कि ओके लेट्स लेट्स टेक दिस नेक्स्ट 50 रन्स, वो कैसे आ रहे हैं हमारे। हम्म, Not look at 443 straight away, but look at smaller targets, 50 runs and 50 runs, and then see, okay, maybe after 50 55 overs in the day, where are we? Then think बाद में about, द्रविड़ को okay, कॉल करके बोल देते हैं। हाँ हाँ कर देना नहीं, चाहिए। सही कह तो रोहित शर्मा को कॉल कर रहे या द्रविड़ को कर दे। हैं। सबको कर देते हैं, क्या होगा एक बारी में सब इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा। Okay. So our predictions for tomorrow. Who is the player that you will pick for tomorrow? कौन सबसे ज्यादा from Team India, of course. Who will be the key या for देख, तो आई तो वांट विराट कोहली और रहाणे, just बट one? मुझे लग Pick one. रहा है पिक वन विराट कोहली। वैसे मेरा मन तो था ठाकुर को पिक करने का, बट मुझे लगा ठाकुर तक बारी क्यों है, वहां तो तक विराट बैटिंग आ गई ना, अगर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। so विराट कोहली so ही for ठीक है। for all our viewers, Manan Chadda is a big Thakur fan. ही इज, जो उसने बोला, जबकि ठाकुर ने 8 ओवर में सिर्फ 8 ही ओवर डाले आज। उमेश यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की इस इनिंग में, लेकिन बट एंड 8 ओवर में कोई विकेट नहीं मिला शार्दुल ठाकुर। स्टिल मनन वाज लाइक, उसने बहुत अच्छे एटीट्यूड से, बहुत अच्छे इंटेंट से बॉलिंग की है आज। so he is a die hard fan of Lord Thakur. So you can imagine how badly he wants him to bat and win the game for India. We अच्छा wish तू the बता, तुझे same. क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन? आई थिंक रहाणे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विराट एंकल पे करके ज्यादा रखना है। ज्यादा भरोसा है ही, जितनी अच्छे से वो बैटिंग कर रहा है, इसलिए रहाणे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि द वे ही इज गोना बैट, बिकॉज ही, एज आई सेड, थोड़ा सा वो फंसता है स्पिनर्स पे। ही हम्म, लाइक्स द बॉल टू कम ऑन टू बैट। सो द गुड थिंग इज दैट ये विकेट अभी भी अच्छा है, बहुत बॉल बहुत अच्छे से बैट पे आ रही है, कोई रुक के नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सो ही शुड एंजॉय बैटिंग हियर। Like the first हम्म, inning, he played a brilliant knock in the first inning. But हम्म। just तो पहली from इनिंग्स में उसने दो तीन चांसेस तो दिए थे ना। दो तीन चांसेस, वही अगेन लक तो चाहिए ना, आपको थ्रू आउट लक तो तो ऐसा चाहिए, लग नहीं बिकॉज चाहिए कि मतलब आउट होके मतलब नो बॉल पे आउट हो गया मतलब लग चाहिए कि एज he लग was के again intent, he was trying to score all the time, right? That was the intent. That's चलो why he's, होपफुली and that इसी तरह से तो उसने मेलबर्न में भी जो 100 बनाया था जब इंडिया जीती थी हाँ एज वो अ भी ऐसे ही कैप्टन, बना था। तब भी इसके इसे 3 चांसेस ऐसा कुछ, 3 या 4 चांसेस ऐसे मिले थे तब भी, बट ही हम्म, continued playing his shots. I think that's the attitude that he has, the intent that he has. तो he should keep it, because जो भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको छोड़ेंगे अगर, तो फिर आप दूसरी टीम को नहीं डाल सकते ना प्रेशर में। हम्म। वो तो अपॉर्चुनिटी है प्रेशर मतलब में डालने की। तुझे कल कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है इंडिया की जीतने की? फॉर नाउ आई थिंक 20% for now. Uh, but it will definitely change if we do not lose any wickets in the first hour. It will go on to like 30-35% for sure. नहीं, If, आई एग्री। I mean, even if we don't score a lot of runs, I think it's okay. हाँ मुझे लगता है रन Just ना don't भी lose a बने तब wicket. भी मतलब, हाँ क्योंकि Hmm. मतलब, और मुझे इसलिए में ये भी लगता है जैसे ही 200 से स्कोर कम आया ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया की भी एक बात ये हाँ है कि ऑस्ट्रेलिया भी विन के लिए ही जाएगा।
एग्जैक्टली राइट। तो हाँ। मतलब ये दोनों टीम्स में मतलब ये तो अच्छा है कि, और मतलब इंडिया भी अच्छे, बट आई होप बस पहला ये सेशन साले निकाल ले। हाँ, मुझे यही लगता है कि दो ही प्रोबेबिलिटीज हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया विन और इंडिया विन। आई डोंट थिंक ड्रॉ होगा मैच। ड्रॉ होगा, मुझे भी कोई नहीं लगता, चांस नहीं है बहुत कि ही 90 कम। ओवर्स अगर इंडिया खेल गई पूरा तो इंडिया विल तो विन। जीत जाएगी। तो इंडिया विल विन क्योंकि क्योंकि इंडिया स्कोरिंग में रेट यार कोई ऐसा है ऐसा भाई। कोई प्लेयर ही नहीं है ना जो आराम से खेल ले, कौन एग्जैक्टली खेलेगा exactly, इसके बाद। स्कोरिंग रेट ही ऐसा है तो भाई अब 90 ओवर्स खेलेंगे तो 280 बन जाएंगे। जस्ट दैट अगर 90 ओवर्स नहीं खेलेंगे तो फिर आउट ही है। हाँ, नहीं फिर सही तो कह रहा आउट है, ही है। एग्रीड। नहीं तो कल का फर्स्ट सेशन तो इम्पोर्टेंट बट होगा ही। बट ओके सो आई मीन सो टू सम इट अप आई थिंक हमारे लिए फर्स्ट सेशन कल बहुत इंपॉर्टेंट है। If we do हम्म, not lose a wicket in the first session tomorrow, I think we have a India has a good chance to do this to get this unlikely win. But a lot depends on how this pair bats हम्म, tomorrow, especially in the first session. We'll look at that. Manan will take care of the first hour of the game, and I will take it forward from there. yep. Yeah. And if you have any questions for our expert Manan Chadda or myself, uh, you all should have our numbers already. हाँ यार, मतलब Just सारी shoot क्वेश्चंस को पता ही होना चाहिए यार, मतलब। just shoot us a text or ring us up. We'll be happy to chat with you. And if you want to be a special guest on this show, on this on this पैनल। chatter, we would love to have you on board because it's always good to have two experts rather than just one. Manan Chadda being the only one there. So we would love to have you. Right. Thank you. थैंक यू।